I will just imagine that you are sitting straight? Okay, I got some thumbs up. Good. Fine. So I have got a few thumbs up. Okay. Now that you're sitting straight, how about this? Do this with me. Okay. Okay. Everybody stand up and then sit down and then stand up and then sit down and then stand up. And no, not yet, not yet. No, no, not yet, not yet, not yet, not yet. Okay, sit down. All right. Okay. I just wanted to ensure that we give everybody a chance to have some movement. And hopefully you did this exercise with me. So you have been able to see what I was doing. I hope so. Did you see what I was doing? Okay, great. Okay, thank you so much, Harsh, for that response. Okay, great. So we are going to today talk about this interesting topic called handling failure, and this is one of my favorite topics. मुझे ये topic बहुत पसंद है, इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे fail होना पसंद है, but इसीलिए क्योंकि failure एक ऐसी चीज है जो आपकी life की certainty है. There is a saying that the only thing guaranteed in your birth is your death. But मेरा एक और उसमें कहना है, the only thing guaranteed if you live for more than a month in this planet is failure. There will be something जो आप attempt करोगे और आप first go में नहीं कर पाओगे, right? And that's why it is my favorite topic, and that is why मुझे लगता है कि आज weekday में भी 5 PM हमारे पास 40 plus participants हैं. So यही शो करता है कि ये टॉपिक कितना जरूरी है, and that's why we are going to discuss this topic. Now, in the meanwhile, I'm speaking in Hindi and English because last time I got a feedback that maybe not everybody speaks Gujarati. But if you would like me to emphasize on something in Gujarati, please let me know in the chat box. I keep on checking it continuously. Okay. So I'm so happy that you are ready. Now, the reason I asked all of you to sit up straight and maybe do a little bit up and down exercise, for the simple reason is because I want you to be in the now. The best way to be in the now is to force your body into the now. And to force your body into the now, the easiest way to do that is to create movement in your body. Okay? So that's as simple as that. Like I said, we are going to talk about what is failure, what is the experience of failure like. You have shared, not all of you, but some of you have shared your stories. So we are going to discuss the story of failure, rise from failure. And I love the word rise because it reminds me of the movie Batman, the Dark Knight Rises. So उसमें जो डार्क नाइट होता है, थर्ड जो पार्ट है बैटमैन सीरीज का, उसमें ये बताते हैं कि कैसे बैटमैन जो है वो कहीं का नहीं रहा, has burned down his house, people think he's the enemy number one and all those things, but still एक situation आता है which calls upon that person to rise कि भाई अभी अपने आप को साबित करो. एंड उसके बाद में मैं आपको एक ABCD बढ़िया सा फॉर्मूला दूंगी टू ओवरकम योर फेलियर. सो आई होप यू आर रेडी. इन द मीनवाइल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, मैं कंटिन्यूसली चैट बॉक्स चेक कर रही हूँ. प्लीज अपने क्वेश्चंस लिखिएगा और मैं इंश्योर करूंगी कि आपका नाम नहीं लूं सो दैट आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन हो. मैं समझ सकती हूँ कि ये टॉपिक में आप शायद कोई ऐसे भी डिटेल्स शेयर कर जाएं जो आप वैसे किसी के साथ शेयर नहीं करते या आप कंफर्टेबल नहीं है. ओके, सो आई एम गोइंग टू एंश्योर दैट आई रिस्पेक्ट योर कॉन्फिडेंशियलिटी, बट आई वांट यू टू एंश्योर दैट यू गिव मी 100% पार्टिसिपेशन. ओके, सो मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया गया था लास्ट टाइम कि आना मैडम आपके एक चीज जो हम लोग मिस कर रहे हैं वो है हाई फाइव्स. बट यू हैव राइट हैंड, लेफ्ट हैंड.
high five each other and let's begin this session. Okay, so I'm also going to giving you 2 thumbs up. All right. Okay, excellent. So failure. ये फेलियर क्या चीज होती है और इस पे इतना डिस्कशन करने की क्यों जरूरत है? फेलियर पे बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स थे. कल मैंने ट्राई किया था दैट कल मैंने ट्राई किया था कि मैं डेफिनेशन ढूंढूं फेलियर की. सॉरी, व्हाट वाज हु इज दैट? I think I'm getting a question. Nirali is not, I think the presentation has got disturbed. Nirali, right? Yes, sir. Yes, sir. You have to bring the presentation screen. Okay, can you see it? Yes, yes. Did you see the previous slide? Did everybody see this? No. Yes. Now we see. Okay, all right. Okay, thank you very much. Thank you so much. So this is why it is so important to have people on the other side viewing this thing कि मुझे समझ में आए कि हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ one way feedback है. But thank you very much, and I'm so happy that we began this session by technology failure. Okay, so that's amazing. Okay, so coming back to failure, इस पे बहुत interesting ये discussions होते रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों को हीरो क्लेम दिया है, टाइटल दिया है जो फेलियर से ऊपर आते हैं. Thanks to COVID-19, I should say thanks for now. There have been a lot of things that I have been doing जो मैं पहले नहीं करती थी. To give you an example, मैंने पिछले 2-3 हफ्तों में एटलीस्ट 4 सुनील शेट्टी की पिक्चर देखी है बिफोर 2000. ओके, so it was गोपी किशन, मैं बलवान हूँ, हम किसी से कम नहीं ना. मैं पिक्चरों के नाम इसलिए नहीं बता रही हूँ आपको कि मैं आपको ये पिक्चर प्रमोट कर सकूं, बट इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि सारी मूवीज की थीम एक ही थी कि एक हीरो है, वो अच्छा है, अच्छा काम करता है, बट उसको फेलियर मिलता है. फिर वो अच्छा काम करता है उसको फेलियर मिलता है. फिर वो कुछ करता है, फिर शायद उससे कुछ गलती हो जाती है. ओके, अब गलती होती है तो उसके सामने मैसिव फेलियर आता है. So he's trying to be good, do good, but he's still failing, or maybe sometimes failing, sometimes moving ahead. And then maybe उससे कुछ अच्छा करने के चक्कर में वो बहुत बुरा कुछ कर देता है and उसका बहुत मैसिव फेलियर होता है. बट उस मैसिव फेलियर के बाद में जब वो रिकवर करता है, राइट, देन वो जो हीरो है, उस मूवी का जो हीरो है, वो जो डायलॉग्स आते हैं, वो जो फाइट सीन्स आते हैं, फीलिंग वही आती है कि वाओ, इसको तो देख के सीटी बजा सकते हैं, या वाओ व्हाट अ हीरो, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग माचो हीरो. एंड क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि आपका जितना बड़ा फेलियर होगा उतने ही बड़े आपको सुपर हीरो बनने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. इसके बारे में मैं और बात करूंगी, but let me begin with this one idea about failure which I feel is brilliant, and this idea has been given by William Reddington Hewlett. Okay, if you don't fail on a regular basis, you are not trying hard enough. बहुत इंटरेस्टिंग सेइंग है. अगर आप रेगुलरली फेल नहीं हो रहे हो यानी कि आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो. Okay, and this is not my perspective, this is William Reddington Hewlett's perspective. एक और आपको सुनाऊंगी. If you're not failing, you must be doing something wrong, or maybe you are doing nothing at all. अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो कुछ गलत कर रहे होगे, क्योंकि अगर लाइफ में सब सही करते हैं तो ये लाइफ, अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपकी लाइफ की मूवमेंट ऐसी नहीं हो सकती है. आपने अगर ईसीजी ग्राफ देखा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का ग्राफ देखा है, वो भी ऐसे जाता है. जब वो ग्राफ ऐसे जाता है मतलब कि the person is gone. All right, this means that the person is still alive, right? So this is the quotation. If you are not failing, you must be doing something wrong, or maybe you are doing nothing at all, because that is the only other logical option. कि भाई ये क्यों इसको सब कुछ कोई फेलियर एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा है. बिकॉज अगर आपके पास आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो फेलियर एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है.
हाँ, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले सकती हूँ क्योंकि ये कोटेशन मैंने दिया है. बट इस कोटेशन के पीछे एक इंटेंशन है. द इंटेंशन टू से दैट फेलियर इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. Is and the idea of the interaction we are having today is I want you to learn this thing or I want you to integrate this thing कि आपकी लाइफ में अगर आप फेलियर को अपना बेस्ट फ्रेंड बना देते हो, there is nothing else that you need to be worry about. Once again, अगर आपकी लाइफ में आप फेलियर को आपका बेस्ट फ्रेंड बना देते हो, बेस्ट फ्रेंड इसीलिए नहीं क्योंकि आप हमेशा उसको साथ रखोगे, बट बेस्ट फ्रेंड इसीलिए क्योंकि बेस्ट फ्रेंड के पास आप जाते हो और बेस्ट फ्रेंड आपको बहुत अच्छी एडवाइस देता है, राइट? बेस्ट फ्रेंड के पास आप तब जाते हो जब आपको कुछ सीखना होता है, जब आपको कुछ शेयर करना होता है. सो अगर आप फेलियर को उस तरह से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हो, you will stop worrying about failure and start enjoying it and more importantly learning from it. Okay, बहुत सारे और भी quotations है like failure is the stepping stone to success. अब ये सारे quotations मैंने तो बनाए नहीं हैं, but the reason they are there is because they have pearls of wisdom in it. कि अगर मैंने लास्ट टाइम भी एग्जाम्पल दिया था कि थॉमस एडिसन से पूछा गया था कि भाई आप कब से लाइट बल्ब बना रहे हो बोल रहे हो, बट आप तो 999 टाइम्स फेल हो चुके हो. तो कहते नहीं 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 नहीं, एटीट्यूड उसका करेक्ट था कि मैं फेल नहीं हुआ, मुझे पता है कि इन तरीकों से नहीं बनेगा लाइट बल्ब, एंड दैट इज ओके. ऑलराइट, चलो मूविंग अहेड. So what is failure? This is a good time of probably describing what is failure. Why? Because failure is an experience जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारे emotions feel होते हैं, and these are not always empowering emotions. ये emotions वैसे नहीं है जो हमेशा आपको help करते हैं आगे बढ़ने के लिए. Okay. It is the action or the state of not functioning. ये मुझे best definition लगा. मैंने इंटरनेट पे जब सर्च किया, ऑनलाइन डिक्शनरी सर्च की, तो मुझे बेस्ट डेफिनेशन लगा. फेलियर इज द एक्शन, यानी आप कुछ कर रहे हो, और मोर इंपॉर्टेंट वर्ड, योर स्टेट ऑफ माइंड, योर स्टेट ऑफ बीइंग, योर स्टेट ऑफ डूइंग, ऑफ नॉट फंक्शनिंग, दैट यू आर नॉट डूइंग समथिंग. एंड इसी के बेसिस पे मेरा प्रीवियस कोट था. नाउ व्हाट विल यू से इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ फेलियर? Batao, please, you can answer in the chat box. What is the opposite of failure? And I'm checking the chat box right now. Success, 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 growing, learning, success, 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 learning, growing. Oh, come on, there are over 52 people on this call. चलो 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 सब जवाब दो. Once again, अगर स्टेट में नहीं हो ना तो मैं कंटिन्यूसली उठक बैठक कराऊंगी सबसे. Growing or development, pass. Okay, failure, pass. Okay, got that example. Attempting, always in momentum. Okay. All right. So this is very interesting. ठीक है? Okay, success. And I'm so happy. So number one point. Failure is not the opposite for success. So failure is not the opposite of success. I know maybe in school we learned this definition, या हमने ये सीखा होगा कि भाई success opposite failure, and हमारे मन में वो कंडीशन इस तरीके से किया गया है कि हम लोग सोचते भी नहीं है 2 बार कि ये opposite हम लोग किस बेसिस पे बोल रहे हैं. Trying to move, flowing, experiencing. Okay. Actually, failure is not even the opposite of flowing or lack of momentum. Failure is the opposite of stagnation, of being stuck. Please, ये चीज अपने दिमाग में, आपका जो दिमाग है ना, आप सुनते सुनते थोड़ा मसाज भी कर सकते हो. क्यों? क्योंकि ये चीजें एब्जॉर्ब होनी चाहिए. जब घर पे चंपी करते हैं तो मम्मी मसाज करती है, घर पे कोई मसाज करता है, या खुद अपने सर पे मसाज करते हो, राइट? डोंट वरी, डू दिस राइट नाउ. And say it to yourself aloud. Failure is the opposite of stagnation, or failure is the opposite of being stuck. And हम लोग मसाज इसलिए कर रहे हैं कि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आपके मन में. क्यों? क्योंकि ये बात बहुत सही है कि हम लोगों को सिखाया गया है कि फेल, पास, फेल, सक्सेस, फेल, अटेम्प्टिंग, ट्राइंग,
ये होता है. बट एक्चुअली फेलियर इज द ऑपोजिट ऑफ स्टैग्नेशन. आप एक जगह पे स्टक नहीं होने चाहिए, ये आपका डेफिनेशन होता है फेलियर. देयरफॉर ओके, जब आपको कोई एक्सपीरियंस होता है फेलियर का एंड आप अपना सर पकड़ के बैठते हो कि अरे यार ये तो क्या ही हो गया और इस सिचुएशन में मैं क्या कर लूंगा, राइट? रिमेंबर, in that situation you are going from a place worse than failure, that is stagnation. You are getting stuck. लाइफ में कुछ भी करो, स्टक मत हो. All right, again I'm going to go back to popular proverbs or idioms. Okay, a rolling moss, a rolling stone never catches moss. मतलब कि अगर पानी के बहाव में पत्थर रोल होता रहता है तो उस पे कभी जो चिक्कट हम लोग बोलते हैं ना, या जो मॉस हम बोलते हैं, वो कभी नहीं आता है. फॉर द सिंपल रीजन, क्योंकि वो मूव हो रहा है, राइट? सो फेलियर इज द ऑपोजिट ऑफ स्टैग्नेशन. नाउ डज इट मीन कि आप भागते रहो? नो, ऑफ कोर्स नॉट. बट इट ऑल्सो मीन्स दैट योर ड्यूटी, आपका धर्म है लाइफ में कि आप एक जगह पर स्टक अप होके नहीं बैठो, राइट? चाहे आपका मेंटल ग्रोथ हो, चाहे आपका फिजिकल ग्रोथ हो, चाहे आपका बीइंग का, आपका स्पिरिचुअलिटी का ग्रोथ हो, राइट? It is your demand of life that you don't get stuck. All right, so enjoy failure or prefer failure over getting stuck. All right, I'm just going to check the chat box if there are any new questions or any new comments. Okay, wonderful. We are going to move ahead. Now, what is the experience of failure like? Okay, and here is where I'm going to use some data. So we had 18 responses and thank you so much. आप में से जितनों ने भी respond किया है, thank you so much. And अगर आप देखते हैं, so from the 18 responses, 66.7% of you said that your experience of failure had happened between 11 to 20 years of age. And 33.3% said that your experience of failure happened between 21 to 30 years of age. Now, ये statistics important क्यों हैं? पहली बात ये, क्योंकि ये युवालय है तो more or less सारे जो participants होंगे ये young ही होने वाले हैं. But interesting thing is कि किसी ने ये नहीं बोला है कि उनका सबसे big failure है या जिस failure को वो मन में लिख के चल रहे हैं वो 1 to 10 की years में हुआ हो, right? आप और मैं, हमारा एज डिफरेंट है, बट हम सब ने 1 to 10 का इयर्स अपनी लाइफ का जिया है, राइट? बट चाहे आप मेरी एज पे हो, चाहे आप आपकी एज पे हो, चाहे आप पटेल सर की एज पे हो, सॉरी सर, आई डिडंट वांट टू इन्वॉल्व यू बट यू गॉट इन्वॉल्व्ड, ओके, सॉरी. बट हमारे सब में ये चीज कॉमन है दैट 1 to 10 इयर्स ऑफ एज हम सब ने जिया है. बट किसी ने भी अपना बिगेस्ट फेलियर या अपना मेजर फेलियर, इवन इफ इट्स नॉट द बिगेस्ट, द मेजर फेलियर 1 to 10 years में नहीं रखा है. नाउ आई कुड बी रॉन्ग, ओके, एंड इफ आई एम रॉन्ग आई विल टेक दिस फेलियर प्राउडली ऑन माई सेल्फ. बट मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि आप 1 to 10 years का इसीलिए नहीं लेते हो कोई फेलियर because at that time your mind is young, your mind is full of fun, your mind is looking to learn at new things, and आप failure को as a social taboo देखते ही नहीं हो. इसीलिए 1 to 10 years का किसी का डेटा है ही नहीं. 18 respondents, okay, and tell me if I'm wrong. I know that there are over 50 people in this call, okay. क्यों 1 to 10 years तक? क्योंकि तब आप नेचुरली चंचल होते हो, आप लोगों के बोलने से स्टक अप नहीं होते हो. याद करो 1 to 10 years के बीच में जब भी आप क्रिकेट खेलते थे और आपके पड़ोस वाले आंटी आपको डांटते थे, आप क्या करते थे? भाग जाते थे. बट नेक्स्ट डे फिर उधर ही क्रिकेट खेलने आते थे. नॉट बिकॉज यू हैड, एंड आपको ये भी नहीं था कि यू वर लाइक अरे आंटी ने मुझे ये ऐसा बोल दिया यार, अब तो मैं क्या ही करूंगा. या वही क्रिकेट मैच में 0 पे आउट हो गए और तब शायद आप अपसेट भी हो गए होंगे, बट नेक्स्ट डे यू वुड कम बैक टू प्ले. सो वेयर इज दैट चाइल्ड लाइक क्वालिटी ऑफ नेवर गिविंग अप? वो क्यों हम लोगों को, जैसे हम लोग ओल्ड होते हैं हम लोग, वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो क्वालिटी तो नहीं छूटनी चाहिए, राइट? व्हाई डू वी लेट गो ऑफ दैट क्वालिटी? It should be something that we should be hugging and embracing, that yes, I am an awesome person.
मैं तो कभी भी कोई मुझे रुक बोलता था तो नहीं रुकता था, तो अभी मैं ये सो कॉल्ड फेलियर को लेके क्यों रुकूं? राइट? ओके, okay, good point. Thank you so much for acknowledging that it is a good point. All right, so this is the data that I have for you, and this is where I'm going to bring in the experience of failure that we have commonly shared or we have individually shared. But the good thing is 18 के 18 लोगों ने बोला है कि वो फेल हुए थे. So I haven't had one respondent up till now from those 18 respondents who said that, oh, you know what, never failed. सभी ने अपना फेलियर स्टोरी शेयर किया और सभी ने यही बोला कि हाँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है फेलियर. ओके, कंटिन्यूइंग फर्दर, what is another aspect of failure? So the emotions that are experienced. Okay, so the emotions that are experienced, उसमें कि ये सारे एक्सपीरियंस मैंने ये जो लिस्ट किए थे, the number one experience that was, or the emotion that was experienced is sadness. All right, सभी को फेलियर के बाद में एक इमोशन, और एटलीस्ट 18 में से 17 लोगों को फेलियर के बाद में जो एक इमोशन एक्सपीरियंस हुआ है वो है सैडनेस. द गुड थिंग अबाउट दिस टूल वाज कि आप मल्टीपल इमोशन सिलेक्ट कर सकते थे. दैट्स व्हाई द सेकंड वन व्हिच इज वेरी क्लोज, इट इज एंग्री एट माई सेल्फ. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने स्टोरीज पढ़ी है, ठीक है, उसमें कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जहां पे स्टोरी इस तरह से है, वही हीरो वाली स्टोरी, ओके, कि उसने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया, सब कुछ सही किया, बट फेलियर. ऑलराइट, सो आप खुद पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? यू डिड योर बेस्ट, यू पुट योर हार्ट, सोल एंड व्हाट नॉट इन इट. ऑलराइट, so why are you angry at yourself? And then the next two emotions which are very close is irritated and guilty. All right, irritated and guilty, चिड़चिड़ा होना. Right, what if instead of that चिड़चिड़ा होने से बेटर आप कुछ ऐसा करो कि अगली बार आप फेल हो तो आप पार्टी करो. I know not in COVID times, all right, obviously, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है, या आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए पार्टी करो. राइट, what if you do that? Can you feel irritated in that moment? I really doubt that. But उससे भी बड़ा जो इमोशन है जो किसी को ट्रबल करता है वो है गिल्ट. गिल्ट एक ऐसा है, सी द थिंग अबाउट बीइंग गिल्टी इज, आप शायद फेस पे कुछ नहीं दिखाओगे, बट इट मेक्स यूर बीइंग हैवी. आपका सोल हैवी करता है, और आपका जब बीइंग हैवी होता है तब आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते हो. See, all these emotions that we are talking about, and then these emotions are followed by being confused, angry with someone else, okay, what else is feeling lonely, feeling disgusted, feeling overwhelmed, like a slap in the face, or humiliation, feeling embarrassed. These are all emotions जो आपको भारी करता है और आपको नीचे पकड़ के रखता है. All right, इमेजिन करो इस तरीके से that you have rocks tied to your legs और आपको पानी में फेंक दिया है. आप स्विमर हो, बहुत अच्छे स्विमर हो, राइट, यू आर द बेस्ट स्विमर, यू वर प्रैक्टिसिंग फॉर स्विमिंग and winning swimming competition since the day you were born, okay, but आपके पैर में rocks बांध दिए हैं. The rocks called sadness, guilty, confused, fearful, lonely, disgusted, irritated, angry at my own self, angry at someone else, overwhelmed, slap in the face, humiliation, embarrassed. ये सारे rocks आपकी टांगों में बांध के आपको पानी में फेंक दिया है. क्या आप swim कर पाओगे? चलो आप हाथ मार के, पैर मार के कुछ ऊपर आ भी जाते हो, but can you be there for a long time? I really doubt that. तो क्या सोल्यूशन है इसमें से निकलने का? Come on, tell me in the chat box. ये जो आपका एक्सपीरियंस है जहां पे आपको गिल्टी फील हो रहा है, जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं है कि भाई मैं अपने आप को कैसे कि आप स्विमर हो, स्ट्रांग हो, लेकिन आपको नीचे खींच रहा है वो रॉक्स. What is the best way? Wonderful, let go of everything. स्टार्ट फ्रेश. वो जो बांधा हुआ है उसकी गांठ खोल दो और जाने दो वो पत्थर.
right? Taking it as a learning of life. Forget, don't even take it as a learning. अरे उसको वो see, rocks are not meant to be taken as anything. All right. जैसे ही आपने वो पत्थर छोड़े अपने टांगों से, आप आराम से ऊपर स्विम कर पाओगे. All right. Let's do another exercise. Do all of you have okay, we will do this exercise right now. Okay. Take something small in your hand. I have this small bottle in my hand. Okay. It's a very light bottle. Everybody take a bottle in your hand. I know I can't see you, but everybody take a bottle in your hand. All right. And hold it. ऐसे ऊपर करके. बस इस बॉटल को आपके और राइट हैंड में रखना है, राइट हैंड में रखो, लेफ्ट हैंड में रखा है, लेफ्ट हैंड में रखो, बट वंस यू होल्ड इट आप चेंज मत करो. आई एम इमेजिनिंग इन माई हेड दैट यू आर ऑल डूइंग दिस विथ मी. ओके, हाउ डज इट फील? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, राइट? यू कैन होल्ड इट. आपको क्या लगता है कितने टाइम के लिए आप होल्ड कर सकते हो ऐसे? यू कैन आंसर इन द चैट बॉक्स. दूसरे हाथ से आप चैट बॉक्स में एंटर कर सकते हो. आप कितने टाइम? 5 minutes. ओके, 5 minutes. वंडरफुल. 6 minutes. 1 hour. 5 to 10 minutes. Okay, so I'm getting. So I guess what I'm having in the crowd is mathematicians and statisticians both. Because I'm getting very specific, like 6 minutes, and then I'm getting 5 to 10 minutes. Okay, few minutes, 5 minutes, 10 minutes. Right? If you're doing it right now, अभी भी अगर आप ये पोजीशन में हो, okay, मेरे जैसे पोजीशन में हो, how are you feeling? Are you comfortable, or suddenly this light, empty bottle? Only until I want to hold, I can. Wonderful. Okay, so not comfortable, not really comfortable. Some pain, थोड़ा pain हो रहा है. अजीब लग रहा है कि ये मैं क्यों इस हाथ को ऐसे लेके खड़ी हूं, या क्यों मैं, why am I holding on to this bottle? ओके, थोड़ी देर में हेवी लग रहा है. ओके, इंटरेस्टिंग. सम स्ट्रेन, एंड मे बी यू कैन पुश थ्रू दैट स्ट्रेन. अंडरस्टैंड दिस थिंग. ऑलराइट. ओके, नाउ द रीजन मैंने आपसे ये एक्सरसाइज कराया, द रीजन इज अ वेरी सिंपल रीजन. रीजन इज दिस कि आपने ये बॉटल या एक ग्लास या एक छोटा सा कोई आइटम पकड़ा हुआ है. जब आप फेलियर एक्सपीरियंस करते हो, वो जो इमोशंस आप एक्सपीरियंस करते हो, आप एक छोटा सा बॉटल नहीं, आप एक बॉटल, एक पेन, एक बड़ा बॉटल, हेडफोन्स, न जाने क्या क्या, मोबाइल फोन, सब कुछ पकड़ के खड़े हो इन वन हैंड, इन द सेम हैंड, एंड देन यू आर सेइंग कि पेन फील हो रहा है. पेन नहीं तो क्या फील होगा? यू कैन, एवरीबडी यू कैन पुट योर थिंग्स डाउन. ओके, पेन ही फील होगा ना, बिकॉज यू हैव बीन होल्डिंग ऑन टू थिंग्स. सी, वंस अगेन, stagnation is the enemy, not failure. Okay, अगर आपने किसी चीज को एक ही जगह पे उसी इंटेंसिटी पकड़ के रखा है, लाइक हम लोग बहुत बार करते हैं कि मैं, आई फील दैट somebody, some teacher treated me unfairly, या मुझे ऐसा लगता है कि ओ ये अपॉर्चुनिटी तो मुझे मिलनी चाहिए थी, मेहनत मैंने की, मुझे रिकॉग्नाइज होना चाहिए था, किसी और को हुआ है, मैं फेल हो गया, या मुझे ये नहीं मिला जो मैं चाहता था. And all you are doing is you are holding on to that emotion. And when you hold on to that emotion, जब आप उस emotion को पकड़ने की कोशिश करते हो, ये सारे emotions है जो आपको heavy करते हैं, right? As soon as you kept it down, how does your arm feel now? जैसे ही आपने वो चीज रख दिया, वो जो भी आपने छोटी सी चीज पकड़ी थी, जैसे ही आपने वो रख दी, आप कैसा फील कर रहे हो? Hello. Yes, Jackie? Ma'am, I am unable to type in the chat box, ma'am. Don't worry, you can answer me like that. Okay, okay. Do you have anything to say right now, Jackie? It feels free right now. It feels free. Wonderful. Thank you so much. Yes, it feels free. Suddenly ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये कितना pointless था.
कोई जरूरत नहीं थी मुझे मेरे हाथ में वो बॉटल पकड़ने की, मुझे दर्द भी हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं काफी टाइम के लिए कर पाऊंगी, बट in the end the whole thing is that it is not helping you, it is not empowering you. Stagnation and getting stuck in these emotions is not taking you anywhere. All right, so now what is next? All right, this is my definition of failure. A person experiences failure when that experience, जो भी experience है of failure, makes her or him question her or his own identity or sense of self. ये मेरा डेफिनेशन है, ठीक है। हमें फेलियर तब एक्सपीरियंस होता है जब मुझे, या मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, मुझे एक्सपीरियंस तब होता है, फेलियर तब एक्सपीरियंस होता है जब मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार ये मैंने कैसे कर दिया। सी रिमेंबर द होल थिंग विल बी, या ये मेरे साथ कैसे हो गया, राइट। आपकी जो स्टोरी होगी फेलियर की, वो आप उसके सेंटर पॉइंट पे होगे और वो आपके आजू बाजू में रोटेट कर रही होगी। ये मेरे साथ कैसे हो गया, ये मेरे, या ये मुझसे कैसे हो गया, या ये मैं कैसे कर सकती हूँ, या ये मेरे घर में, या ये मेरी फैमिली के साथ। द फेलियर, द डेफिनेशन ऑफ फेलियर बिल्ड्स इन when it is identified with experiencer. And इसीलिए I'm going to go back to my the graph, the pie chart that we saw, जिसमें किसी ने भी 1 to 10 years के बीच में नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि 1 to 10 years के बीच में हमारा सेल्फ आइडेंटिटी इतना स्ट्रॉन्ग तो हुआ ही नहीं है, राइट। हम लोग अभी भी 1 to 10 years में वी आर स्टिल लुकिंग एट आवरसेल्व्स एज लर्नर्स कि हाँ मैं इस दुनिया में आया हूँ सीखने के लिए, जीने के लिए, ग्रो करने के लिए। I am full of enthusiasm of looking forward to the next day. I'm not saying next day in the sense of कि स्कूल जाना अच्छा लगता है, but next day in the sense कुछ सीखना अच्छा लगता है, right? And this design of identity and self comes from social upbringing. आपकी social upbringing आपकी identity formation में बहुत contribute करती है, right? Let's say, okay, let me give you this example. Let's say कि you have been raised in a family which is purely vegetarian. The concept of having non-vegetarian food will be off-putting for you, right? ठीक है। तो अगर कभी भी आपने देख भी लिया, आपको उस मोमेंट पे आप अपने आप को क्वेश्चन कर लो कि अरे यार ये क्या देख लिया मैंने। क्यों? क्योंकि आपका सेंस ऑफ सेल्फ उसमें क्वेश्चन हो रहा है। बिकॉज our thinking or our thought process is that, is there any question that is coming up? Okay, somebody just started their microphone, so if there's a question feel free to ask. Okay, don't feel that you need to stop me, and just ask and then we'll take it from there. Okay, so and ये जो आपका डिजाइन है, ये सेल्फ आइडेंटिटी आपका सोशल अपब्रिंगिंग से आता है। आपकी सोशल अपब्रिंगिंग में आपको जिस चीज को इंपॉर्टेंस दिया जाना है, लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, इट्स एक्चुअली इन माय फैमिली, आई हैव अ रिलेटिव वेयर my uncle and aunt both are doctors, okay, and there was a high pressure on their son to become a doctor. All right, किसी ने उनको बोला नहीं था, but वो प्रेशर रहता ही है, right? But then when he said that okay मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, सबका सेंस ऑफ आई, या सबको ऐसा लगा कि यार आई फेल। पेरेंट्स को ऐसा लगा कि यार मैंने इतना मेहनत किया, मैं डॉक्टर बना, एंड आई वांटेड टू हैव माय चाइल्ड टू हैव द सेम करियर, कि इसमें जो रिस्पेक्ट मिलती है, जो रेम्यूनरेशन मिलता है, मैं चाहता कि मेरा बच्चा को वही हो यार, और मेरे बच्चे को वो करना ही नहीं है यार, मैं फेल हो गया। एंड द चाइल्ड और द, yeah, for sure, the child in that moment was that I understand that you know doctoring is a noble profession, but मुझसे नहीं होता है। एंड उसको भी एक्सपीरियंस हुआ फेलियर इन दैट मोमेंट, बिकॉज उसको भी लगा कि यार ये मैं करना चाहता हूँ फिर भी मुझसे हो नहीं रहा है, राइट? So what are some of the examples of failures? Okay, I'm a hard-working student. Present again. Sorry? You'll have to present again. You'll have to present again. Interesting, because it doesn't show that. Wait a second. Our Can you see favorite. it now? Yeah, it is I coming. don't know why this is happening today. It is because somebody presents themselves. Jack McQuan did that. Oh, okay. No worries. Yeah. Okay. Fine. So, so some of the examples of failure. Okay, I'm a hard-working student, but I fail in my exams. Okay,
હું મહેનત કરું છું પણ એક્ઝામ્સમાં મને જે નંબર જોઈએ એ નહીં આપતા, કે મને જે સ્કોર્સ જોઈએ, જે પ્રકારની મને કોલેજમાં એડમિશન જોઈએ, આઈ એમ ફેલિંગ ટુ ગેટ દેટ. I failed as a parent, though I did so much for my child. And ये तो I think if any parent sees themselves as a failure, उनका ये सबसे बड़ा वो ये रहता है कि यार मैंने इतना किया यार, फिर भी मैं फेल हो गया as a parent. Okay, I made an excellent presentation, but my competitor got the job. Okay, मैंने सब कुछ सही किया, right? But my competitor, मेरे competitor को वो job मिल गया. So that's another experience which can be off-putting. ये कुछ एग्जाम्पल्स है फेलियर के. नाउ फेलियर कैन बी समथिंग मच स्मॉलर ऑल्सो, कि अरे चेस की गेम में मैं हार गया, राइट? एंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच आप चेस से आइडेंटिफाई करते हो. अगर आपको बचपन से ही बोल के रखा हुआ है कि हाँ तुम बड़े होगे तो विश्वनाथ आनंद बनोगे, तुम इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, तुम नेक्स्ट चेस प्लेयर बनोगे, तुम चेस 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 तुम्हें चेस कोच रखा हुआ है, तुम्हें चेस एक्सपर्ट रखा हुआ है, तुम्हारे मोबाइल फोन में सिर्फ एक ही गेम है, वो है चेस. ओके, एंड लेट्स से यू गेट रियली गुड एट इट, लेकिन आप कहीं कोई मैच हार जाते हो, स्पेशली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हार जाते हो, तो वो आपकी सेंस ऑफ सेल्फ को क्वेश्चन कराएगा ही, क्योंकि आपको उस मोमेंट पे लगेगा कि यार मेरी सारी जिंदगी तो मैंने यही किया है, चेस के पीछे अपना टाइम दिया है, और उसमें भी मैं हार गया, उसमें भी मैं फेल हो गया, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आइडेंटिफाई मोस्ट क्लोजली, आपको उसमें फेलियर भी उतना ही ज्यादा लगेगा, राइट? अगर आपने क्लोजली आइडेंटिफाई किया है पेरेंट होने से, तो आपको फेलियर भी पेरेंट की तरह सबसे ज्यादा लगेगा. अगर आपने क्लोजली अपने आप को आइडेंटिफाई किया है एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन होने से, तो अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो आपको सबसे ज्यादा फेलियर उसमें रहेगा. अगर आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किया है एज अ गुड स्टूडेंट, और स्टूडेंट जिसकी लेट्स से एक जीपीए स्कोर से ऊपर ही आता है, 4.8 से ऊपर ही आता है, एंड आई होप 4.8 इज अ गुड जीपीए स्कोर, बट आपको 4.2 आया, तो आपको फेलियर सबसे ज्यादा उस एरिया में महसूस होगा जिसके साथ आप सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई करते हो. अगर आपको ऐसा है कि नहीं, मैं तो आई एम वेरी गुड विथ माई रिलेशनशिप्स, विथ माई फ्रेंडशिप्स, और अगर आपको वहां पे कोई फ्रेंड, कोई रिलेशनशिप में आपको कोई कुछ बुरा बोल दे कि नहीं आप इसके वर्थ नहीं हो, या नहीं ये तुमने गलत किया, आपको सबसे ज्यादा फेलियर वहां पे फील होगा, राइट? एनी क्वेश्चंस गाइस? What decides failure? Okay, interesting. You decide failure. Actually, you decide everything in your life, because you are the person who gives meaning to any experience in your life. Okay? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. This is very recent example, all right? मैं कल I went to a store and I had to get something very urgently. Okay, but when I reached the store, वो store में वो एक ही चीज, वो प्रोडक्ट एक ही पार्सल था. It was a क्या बोलते हैं डिश वॉशर सोप. ओके, सो वो लास्ट प्रोडक्ट था, एंड मैंने उसको उठा लिया था, राइट? बट व्हाट हैपेंड वाज दैट आई हैड टू मेनी थिंग्स इन माय हैंड, तो मैंने उसको वापस रखा, एंड आई वाज ट्राइंग टू अरेंज थिंग्स इन माय कार्ट. उतने टाइम में कोई और आके उसको ले गया. नाउ आई कुड हैव फेल्ट इन दैट मोमेंट कि अरे यार, हाथ में आया और मुंह को ना लगा टाइप का सिचुएशन हो गया, राइट? वेरी स्मॉल एग्जांपल ऑफ अ फेलियर. बट इन दैट मोमेंट आई वाज लाइक उसको ज्यादा जरूरत होगी, एंड प्रोबेबली मुझे इससे कोई बेटर ऑफर मिलने वाला होगा, इसीलिए शायद मुझे नहीं मिला. ऑलराइट, सो द मीनिंग दैट यू गिव टू योरसेल्फ, ऑलराइट, और द मीनिंग दैट यू गिव टू एनी एक्सपीरियंस is going to make the experience. किसी ने एंग्री बर्ड्स मूवी देखी है? एंग्री बर्ड्स, yes, maybe. एंग्री बर्ड्स किसी ने खेला है? चलो, बेटर क्वेश्चन. ओके, गुड. एंग्री बर्ड्स में एक ब्लैक बर्ड होता है, बॉम्ब करके, ठीक है, जो बेसिकली अगर वो गिरता है तो वो फट जाता है. डू यू नो दैट? ओके, ऑलराइट, सो सम नो, डोंट नो. ठीक है, एंग्री बर्ड्स में बेसिकली बर्ड्स होते हैं दैट आर हर्ल्ड टुवर्ड्स दीज एनिमी पिग्स,
और ये जो ब्लैक कलर का बर्ड है उसमें वो जो व्हेन दैट बर्ड इज हर्ल्ड वो वहां पे बॉम्ब की तरह फट जाता है, राइट? नाउ द रीजन आई एम गिविंग दिस एग्जांपल इज बिकॉज बॉम्ब का एक ऐसा कैरेक्टर है इन द मूवी एंग्री बर्ड्स जहां पे उसको बर्थडे पार्टी का सरप्राइज दो ना तो वो टेंशन के मारे फट जाता है, राइट? व्हाई? बिकॉज वो मीनिंग दे रहा है इस एक्सपीरियंस का, राइट? एंड ही बिकम्स सो स्ट्रेस दैट ही ब्लास्ट अप, ओके? सो बर्थडे सरप्राइज भी रुइन हो जाता है, उसका बर्थडे सरप्राइज भी उसका खराब हो जाता है, ओके? नाउ आई एम गोइंग टू आंसर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस जो यहाँ पे लिखे गए हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है कि भाई 1 से 10 साल में कुछ गलती होती है तो लोग ज्यादा बोलते नहीं, उसके बाद में लोग बोलना शुरू करते हैं, क्या ये एक रीजन हो सकता है? ऑफ कोर्स यस। क्योंकि सोसाइटी और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमें बहुत शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इसीलिए आजकल इतने सारे वर्कशॉप्स हो रहे हैं फॉर पेरेंट्स ऑन पेरेंटिंग एंड सो मेनी थिंग्स, राइट? बट अगर आप इस तरीके से देखते हो कि अगर आप 1 to 10 years में अगर आप देखते हो कि अगर आपको डांट पिटती भी है ना तो भी वो आप ज्यादा टाइम तक होल्ड करके नहीं रखते हो। सी इट इज अ टू वे स्ट्रीट। आपको सोसाइटी चेंज कर रही है या आपको सोसाइटी इन्फ्लुएंस कर रही है, बट आप एज अ पर्सनालिटी भी ज्यादा से ज्यादा रिजिड हो रहे हो। आपकी बॉडी में आपको फील होगा, बचपन में जो आप चीजें कर सकते थे एज अ चाइल्ड, ओके, एक हाथ से लटक जाना, टांग ऊपर डाल के फिर उल्टा लटक जाना, ऑल दोस थिंग्स यू माइट नॉट बी एबल टू डू इट राइट नाउ। आपकी फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी चेंज हो रही है, राइट? वी रिएक्ट टू फेलियर्स एज पर आवर स्टैंडर्ड, या फॉर श्योर आपका स्टैंडर्ड है, बट आपका स्टैंडर्ड बना कैसा है? सी आई टेल यू दिस थिंग, जब आप पैदा हुए थे यू वर नथिंग बट अ क्यूट लिटिल बेबी, right? And when you were that cute little baby, you were not thinking at that time ki, oh, I will become the next prime minister of India, or oh, I am going to go to US and get that job, okay? or oh, I am going to become a doctor. आप ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हो, और I am going to get, I don't know, I am going to top 12th grade, okay? आप ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हो उस मोमेंट पे। आप सिर्फ और सिर्फ एक क्यूट बेबी हो। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है, एंड आई एम श्योर 3 इडियट्स इज अ मूवी जो सबने ही देखा होगा, जब आपको याद है माधवन का कैरेक्टर जब बॉर्न होता है तब उसके पेरेंट्स उसके पैदा होते ही बोलते कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, उसको पहले से स्टैंप लग जाता है, इफ यू रिमेम्बर, राइट? दैट इज सोसाइटी इन्फ्लुएंसिंग यू। बट अगर अभी भी याद हो तो माधवन की जो नेचुरल टेंडेंसी थी of animal photography and interest in being with nature, वो उसने छोड़ी नहीं। See, the whole point of 3 Idiots movie would have been lost अगर माधवन इंजीनियर बनता, ठीक है? But the important thing is कि जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी या जो उसका जो इनोसेंस आता है, उसकी नेचर, उसका लगाव नेचर से जो है, वो ही इन दी एंड उसको आगे ले जाता है। सोशल अपब्रिंगिंग का मतलब, सोशल अपब्रिंगिंग यानी आपको सोसाइटी क्या सिखाती है, आपको सोसाइटी की जनरल डूज एंड डोंट्स क्या है, राइट? आई गिव यू एन एग्जांपल। देयर आर 2 फैमिलीज, बोथ फैमिलीज हैव चिल्ड्रन, ओके? अब एक फैमिली चिल्ड्रन को, बच्चों को ये सिखाती है कि भाई तुम्हें कोई मारे तो तुम उल्टा मार के आना, ठीक है, मार खा के घर मत आना। और दूसरा फैमिली उनको सिखाता है कि देखो कोई मारे तो अवॉइड दैट पर्सन, लाइक यू नो, उनसे बात मत करो या टीचर को कंप्लेन करो या उस तरह से हैंडल करो। सो देयर आर 2 ways in which the children are being taught कि भाई कैसे रिस्पॉन्ड करना है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल अपब्रिंगिंग। That is a consolation. Oh, I think this is from my dishwasher soap example. Consolation to oneself. But I'll tell you this thing. What is better for me to not hold the bottle at all than to me to hold the bottle for 1 hour and then keep it down? Right? अगर मैं बॉटल उठाऊं ही नहीं तो मुझे जो वो इनिशियल पेन भी है वो भी नहीं होगा, right? So that's where, even if it's a consolation, even if it is like it's a big loss, अगर मैं उसको गले लगा के अपने साथ नहीं रखूंगी तब तक वो मुझ पे इमोशनली इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। In our society, okay, ग्रेजुएशन पे एक्सपेक्टेशन शुरू होती है, या फॉर श्योर
होती है, एंड एक्सपेक्टेशन इज अगेन, आई थिंक उसके लिए टोटली डिफरेंट हम लोग लेक्चर ले सकते हैं अबाउट मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस. But here is a good quote, all right, and this quote is from the one of the authors that I really like a lot and I follow. His name is Tony Robbins. Okay, उन्होंने ये बोला है, in life, okay, if you want to be successful all the time, okay, exchange expectations for appreciation. ठीक है, अगर आप उम्मीदों को, ठीक है, ग्रैटिट्यूड से, व्हाट इज द हिंदी वर्ड फॉर ग्रैटिट्यूड? आई डोंट नो द हिंदी वर्ड फॉर ग्रैटिट्यूड. वाओ, हु वुड हैव थॉट दैट? बट अगर आप उम्मीदों को, आप उसके, आप थैंकफुलनेस से, आप ग्रैटिट्यूड से, अगर आप एक स्पिरिट ऑफ कि हाँ भाई मेरे पास ये चीजें तो है, या मेरे पास ये एक्सपीरियंस तो है, राइट, अगर आप ये ट्रेड ऑफ करते हो, राइट, इन एनीथिंग, बी इट योर स्टडीज, बी इट योर रिलेशनशिप्स, बी इट योर जॉब्स, कहीं पे भी ये ट्रेड ऑफ करते हो, यू विल बी अ मोर सक्सेसफुल पर्सन. Okay, प्रोत्साहन. Thank you so much, Harsh. Thank you. All right. If you अगर आप उम्मीदों को प्रोत्साहन से एक्सचेंज करते हो, उम्मीद यानी कि मुझे ये उम्मीद है तुमसे, या मुझे ये है, ये मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे बच्चे हो तो तुम्हें ये करना चाहिए, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये स्टूडेंट हूं तो मुझे ये करना चाहिए, उसको अगर आप अप्रिसिएशन से, अगर आप अप्रिशिएट करो कि आपने देखा होगा अभी कोविड के चलते में, स्पेशली इंडिया में जो माइग्रेंट वर्कर्स को फेस करना पड़ रहा है, हाउ डू यू फील अबाउट दैट एक्सपीरियंस? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. वेरी सैड. ओके, यू फीलिंग वेरी सैड, यू आर फीलिंग ये क्या हो रहा है, राइट? नाउ दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, राइट? व्हेन हम लोग, I remember this thing that when this had started, there was some video that had gone viral where this person is cursing Chinese people. Okay, people who he has never met, we only know that the virus originated there, not that they were making a bomb out of the virus. At least there is no proof, there is no solid backing proof at least for now. All right, but this person is cursing these Chinese people, and people are liking those videos and doing so many things, right? But the thing is that when we experience, but us moment pe, instead of cursing, you can always say that, but at least thank God मेरी सर पे छत है, कि मैं घर पे बैठा हूँ. See, when people say ना कि कोविड के चलते हम लोग घर पे बैठे हैं, अरे भाई घर तो है आपके पास बैठने के लिए. Look at all those people who are walking for kilometers, suffering, and their family members are dying on the way. इट्स नॉट दैट जस्ट उनको वो सफरिंग है कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं. उनकी लाइफ में जो लोग हैं, उनकी वन पॉइंट से पॉइंट बी तक में उनकी डेथ्स हो रही हैं, राइट? it is such a saddening situation. These are moments that you feel empathetic towards them, but you feel appreciative towards your own life. मैं मेरे स्पाउस से यही बात करती हूँ कि अगर हम इस फैमिली में पैदा नहीं हुए होते जहां पे तुम और मैं पैदा हुए थे, would we have this life? Probably no. So can I exchange my expectation कि अरे यार ये भी होना चाहिए, अरे यार ये भी होना चाहिए, अरे यार ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ, या मुझसे ये क्यों चला गया, या मुझसे ये गलती कैसे हो गई? Can I trade it with appreciation about what I already have and who I already am? Remember this thing, आपका जो भी लाइफ में जर्नी है, it is not to achieve someone, but it is to become someone, and it is the becoming is the best version of you, right? It is the best becoming is the best version of you. Okay, the design of identity and self, what is the meaning? Okay, identity, आप अगर मैं, if you have to ask me how would I define your identity, here is the definition. अगर मैं आपको बोलूं write an essay on yourself, आप क्या क्या लिखोगे उसमें? मैं एक आदमी हूं या मैं एक औरत हूं, मेरा ये एज है, मैंने ये पढ़ाई की है, मैं यहाँ जॉब करती हूँ, मेरे घर में इतने लोग हैं, मुझे मेरे ये हॉबीज हैं, राइट? ये सब आप डिस्क्राइब करोगे, राइट?
इससे ज्यादा ये 7-8 चीजों से ज्यादा कुछ होगा नहीं, बट जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। अब ये जितना भी डिस्क्रिप्शन है ये आपकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी आ गई है, ठीक है, जहां पे अगर लेट्स से आप जितने एडजेक्टिव्स अपने लिए यूज करेंगे, राइट, जितने एडजेक्टिव्स आप अपने लिए यूज करेंगे, दैट इज बेसिकली आपकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी है। I am hardworking, that is your sense of identity. I am punctual, that is your sense of identity. I am a good daughter, good son, sense of identity. Good parent, sense of identity. ये सब आपका सेंस ऑफ, जो भी आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हो अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए, आपका सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, राइट? ओके, moving forward. Okay, now the story of failure. Okay, so here's the story. All right, so there is this one person, and maybe you already know that person, all right, but when she was young, she was told, for some reason she was told that she has only 2 career options. One is to become an engineer because her father was an engineer, or 2, to become a doctor because she had a lot of family members who were doctors. All right, these were the only 2 options that she was given. So 1 to 10 years of age, they went by, but she wanted to do something else. She wanted to play basketball, she wanted to dance, she wanted to participate in probably every school function, all right. She wanted to come first in elocution competitions and so on and so forth, all right. But because she had this pressure from home, she could never really be herself. And because she could never really be herself, what happened was she never made good friends throughout her school life. There was no friendship. She would make friends, she would be friends with them for a few days, but few days later she would get frustrated, she would feel that ये लोगों को तो कुछ नहीं आता है, and she would drift away, all right. Probably this person has spent 80% of her school life eating her tiffin by herself, okay, and then playing with one random ball in that she would get from the school locker room. No friendship. Then this person grew up, and if your option is either become an engineer or become a doctor, what subjects should you take after 10th standard? Please tell me. 11th, 12th. If your options is either become an engineer or become a doctor, which stream should you select after 10th standard? Science. Thank you very much. I've got such smart people in the presentation today. Okay, so this girl takes science, all right, and 11th standard came, and उसने PCB combination लिया, because along with when she was growing up, the thing that either become an engineer and a doctor, उसको ये भी बोला गया था कि you are not good at maths. हर कोई बोलता था, टीचर बोलता थे, पेरेंट्स बोलते थे, फ्रेंड्स बोलते थे, सब बोलते थे, नेबर्स बोलते थे, राइट. हालांकि नेबर्स ने उसको कभी इतना भी क्वेश्चन नहीं पूछा था कि व्हाट इज 2 + 2, ऑलराइट, ये भी नहीं पूछा था, फिर भी नेबर्स भी बोलते थे हाँ तुझे तो मैथ्स नहीं आती है, राइट. ओके, ठीक है. सो दिस पर्सन वाज लाइक कि भाई मैं पीसीबी लूंगी क्योंकि भाई मेरे तो मैथ्स के साथ चांसेस बहुत कम है. सो दिस पर्सन टेक्स पीसीबी, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में उसके अभी उसको सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू होता है, उसको रियलाइज होता है फिजिक्स में भी बहुत मैथमेटिक्स. सो ऑटोमेटिकली शी स्टार्ट्स रिजेंटिंग फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट, राइट. एंड वो बायोलॉजी पढ़ लेती है, केमिस्ट्री पढ़ लेती है, बट फिजिक्स को वो रिजेंट करती ही रहती है, एंड शी डज नॉट परफॉर्म वेल. 11th standard खत्म, 12th standard, and she fails in grade 12, right. And because she fails in grade 12, उसके जो भी कॉन्सेप्ट थी अभी तक जितना कि यार मैं तो डॉक्टर बनने वाली हूँ, राइट. बट कौन सा इंसान आप जानते हो जो 12th स्टैंडर्ड में फेल हुआ है और वो डॉक्टर बनने गया है सक्सेसफुली, राइट. नॉट अ लॉट ऑफ पीपल, आई एम श्योर देयर आर एक्सेप्शंस टू द रूल, ठीक है. सो दिस गर्ल इज नाउ लाइक यार मेरा तो सारा का सारा ड्रीम like has been evaporated, right.
पेरेंट्स भी शॉक में हैं क्योंकि पेरेंट्स को बहुत उम्मीदें थी, बहुत एक्सपेक्टेशंस थे, और उस लड़की के साथ साथ उसके पेरेंट्स का भी आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, क्योंकि पेरेंट्स भी यही सोच रहे हैं, यार हमने बेस्ट ट्यूशन क्लासेस लगाई, बेस्ट स्कूल में हमने पढ़ने भेजा, हमने जिस जिस कोचिंग क्लासेस में इसको हेल्प हो सकती थी वो सब कोचिंग क्लासेस में एक्सक्यूज मी, वो सब कोचिंग क्लासेस में हमने इसको सपोर्ट दिया, इसको पर्सनल ट्यूशन किए, सब कुछ किया। हाउ देन मैंने इतना सब कुछ किया एंड देन आई हैव फेल्ड एज अ पेरेंट। सो पेरेंट्स का भी क्राइसिस चल रहा था और उस लड़की का भी क्राइसिस चल रहा था। एनीवेज, नाउ नोवेयर टू गो। उसको एग्जाम, उसको फिजिक्स में उसको रीटेस्ट आता है, वो फिजिक्स का रीटेस्ट देती है, एंड बाय द टाइम शी इज डन ओवर देयर उसके हाथ पे बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर तो उससे पहले ही निकाल दिया, डॉक्टर भी उससे बाद में निकाल दिया, राइट? डॉक्टर उससे अब निकल गया है क्योंकि है ही नहीं, तो नाउ शी इज थिंकिंग कि मैं कुछ भी कर लेती हूँ चलेगा। उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं लुक एट बायोटेक्नोलॉजी, आनंद जाओ ये करो, एंड शी इज लाइक नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो खुद से भी उम्मीद खो बैठी है, एक्सपेक्टेशंस खुद से भी चले गए हैं कि भाई मुझसे ये नहीं हो सकता है, लेट मी जस्ट टेक समथिंग विच जिसमें पीपल से सबसे कम दिमाग लगे, एंड वो बीए में एडमिशन लेती है, राइट? बीए में एडमिशन लेती है, बीए खत्म होता है, एमए खत्म होता है, जॉब शुरू होता है। उसकी जॉब का फर्स्ट 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड होता है टिपिकली, राइट? उसके जॉब के फर्स्ट 6 मंथ्स में जो उसका रिव्यू होता है आफ्टर 6 मंथ्स, जिसपे एक्चुअली डिसाइड करना होता है कि वेदर शी विल गेट दैट जॉब और नॉट, उसको बोला जाता है दैट यू आर एब्सोल्युटली यूजलेस एट दिस जॉब कि तुम है, यू हैवंट अंडरस्टूड, तुम 6 महीने से काम कर रही हो और तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया है कि तुम्हें करना क्या है, राइट? तो दिस इज द स्टोरी ऑफ फेलियर ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ एंड रिलेशनशिप इन जनरल, ऑफ एजुकेशन एंड वर्क, तीनों जगह से ओके। कोई गेस कर सकता है स्टोरी किसका है? एनीबॉडी हु वुड लाइक टू टेक अ गेस? मैंने ट्राई किया है स्टोरी में कवर करना जो सारी स्टोरी सबने बोली थी। यस, इट इज माय स्टोरी। So that's my story. I was really bad at making long-term friends. I did fail in grade 12, and at my first job, and not even my first job, even another job in Canada, मुझे ये बोला गया that you are really bad at this, you are not getting a hang of it, all right? But, and this is the beautiful part, life doesn't stop at failures. What comes after failure? And I want to take you with me on my journey, okay? Rise from the failure. So no friendship, and now I have good, strong friends जो मुझे पता है कि मैं इनको रात के 12 बजे भी अगर मुझे इनसे हेल्प चाहिए, मुझे वो हेल्प मिल सकता है। All right. So from having no friends, I have good, strong friends with me right now. I have wonderful colleagues. Okay, so that's me at my workplace. All right. And don't think मैंने वो चावल मुंह में डाला है, वो सिर्फ फोटो के लिए किया था मैंने. All right. And these are more friends and family and relatives. And ये यहाँ पे से एक friendship हुआ है where I'm happy to be in a space जहाँ पे I am with close friends, with good relationships, with a good spouse, with a good family, with good colleagues. All right. और ये 3 चीजें जो हुई हैं, जो 3 फोटोज मैंने आपको दिखाए हैं, I did not know that this would happen when the time I was failing at friendships. अगर मुझे किसी ने आके बोला होता, let's say मैं 7th स्टैंडर्ड में होती और बोलती कि तुम्हारे पास ऐसे फ्रेंड्स हो गए कि उनको रात के 2 बजे भी तुम कॉल कर सकता है, would have said जाना यार, this is not believable. क्योंकि तब I really did not have any friends. Things change if you work on yourself, if you try to create meaningful lives for others. आप आगे बढ़ोगे. So this is one story. Grade 12. I failed in grade 12. But then I moved on to other, मैंने जैसे बताया ना, मैंने BA किया, MA किया. I actually became a model student. All right. I became very creative at what I was doing. This is basically me looking like a resume. So
I became very creative at what I was doing. I became more confident at expressing myself. Okay. वो सिचुएशन ग्रेड 12 में जिस दिन मुझे पता चला था, मुझे याद है मेरे पापा के पास BSNL का 1100 वाला मोबाइल फोन था, नोकिया 1100, एंड उसपे मैंने अपने टाइप किया था एंड उसमें आया था फिजिक्स फेल. एंड इन दैट मोमेंट अगर आपने मुझे आके कहा होता कि एना यू आर गोइंग टू बिकम द मॉडल स्टूडेंट, there was no way I would have believed you. There was no way I would have believed you. But that changed. I lived through that. That changed. Okay. I am one of, there is a group over here जिसको बुलाते हैं women and not for profit, and now I'm a member of that where I am teaching other people. All right. I'm teaching other people. I'm connecting with other people. I'm supporting other people जिन्हें फेलियर्स एक्सपीरियंस हुए हैं या जो स्टैग्नेटेड फील कर रहे हैं, उनको कैसे आगे बढ़ने में हम लोग हेल्प कर सकते हैं, राइट. एंड आई ऑल्सो गॉट टू डू, आई वाज इंटरव्यूड. ओके, इमेजिन अ ग्रेड 12 फेलियर. ओके, उस वक्त अगर मुझे आपको किसी ने भी बोला होता है कि भाई तुम्हें इंटरव्यू करेंगे, वो भी कनाडा में, ऑल राइट, वो भी ऑन हाउ टू बी अ सक्सेस, राइट, आई वुड हैव सेड ओके कम ऑन, यू आर जोकिंग, राइट. बट वो मोमेंट से आगे बढ़ने पे ही ये सारे एक्सपीरियंसेस आए हैं. ओके, माय जॉब, आई वाज टोल्ड कि तुम्हें नहीं आता है, राइट. आई वाज so proud and lucky that I got to become a teacher, which is probably my passion, my calling, and my life's vocation. And I enjoyed that. Jitna time in India thi, I really enjoyed that. I have my business now, ADM's Career Coaching, and that is the website also, admscareercoaching.com. And I'm able to connect and I'm able to serve you in this moment. Okay, ये सब इसीलिए possible है क्योंकि उस मोमेंट से मैं आगे बढ़ी. अगर उस मोमेंट पे ये बिलीव करके रुक गई होती या ये सोच के कि अरे यार जॉब में भी मतलब अभी तो सब लग रहा था अच्छा चल रहा है, बट अब जॉब में बोल रहे हैं कि तुम्हें कुछ आता नहीं है, ये कैसे हो गया, आई थिंक आई शुड नॉट वर्क, आई शुड स्टॉप वर्किंग, आई वुड हैव नॉट हैड दीज एक्सपीरियंसेस. एंड राइट नाउ I am working full time also as a career coach with a not for profit organization जहाँ पे मैं adults को help कर रही हूँ in finding jobs. All right. So this is my story of rise from failure, and that is what I'm saying. आप लोगों ने जितने भी stories share किए हैं, this is going to be just one small dot in your lifeline if you move ahead from it. See, if you stay at that part, you will just be looked at as a particle. But if you move, you will be seen as a wave. Everybody who got the physics joke, please laugh. Everybody who did not, don't worry. Now, overcoming failure. And ये मेरा promise था, and ये मैं promise अभी पूरा कर रही हूँ. The ABCD formula. Okay. Now, are you ready? A, the attitude. जब आपको failure experience होता है, first of all, recognize what is your primary response. Is it, Are yaar? Is it from the data that I have, primarily what I've heard is sadness. Okay. Now, once you have recognized it, चाहे वो sadness है, चाहे वो guilt है, चाहे anger है, चाहे irritatedness है, can you replace it with an empowering response? मतलब can you replace it with something कि यार, yes, this is something that I can change it into a fuel for my fire. All right. So अगर आपको failure experience हो रहा है, can you actually write it down and look at it and be like, okay, this is a defining moment for me. Instead of looking कि यार मेरा सब कुछ, मेरा जो मेहनत की थी वो मेरे मेहनत पानी में गई, क्या मैं इसको एक नया नाम दे सकती हूँ कि इस मोमेंट पे मेरी लाइफ अब और आगे बढ़ने वाली है, इसीलिए ये फेलियर मेरे सामने आया है. Can I really call it the stepping stone to my success? So number 1, your A, attitude. Work on your attitude. Number 2, B, behavior. What do you do every day to strengthen your mental map? एक ये चीज होता है जहां पे we try to आप अपना एटीट्यूड पे वर्क करते हो, बट एटीट्यूड पे वर्क करने के लिए आपको डेली रिचुअल्स करने जरूरी है, डेली कुछ प्रैक्टिसेस करनी जरूरी है टू स्ट्रेंथन योर मेंटल मैप. यानी कि अगर आपको अपने माइंड को शार्प रखना है, सी अ लॉट ऑफ पीपल आस्क कि भाई तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो. इट इज नॉट अबाउट राइटिंग अ जोक एंड लाफिंग एट दैट जोक. ठीक है, खुशी वो नहीं होती है.
खुशी ये होती है कि आपने अपने आप को ट्रेन किया है कि आप मोर और लेस आप अपने यू आर ग्रैबिंग योर डे बाय द हॉर्न्स एंड यू आर फेसिंग इट, ओके, इंस्टेड ऑफ कि यार पता नहीं आज क्या होगा, देखो चलो सब एक्सपीरियंस हम लोग लेने चलते हैं, राइट? सो एंड अगर आप चाहो तो यू कैन यूज Madam, माय you'll have to डेली present it again. Madam, you'll have to present it again. Yes, yes, sure, sure. Can you see it? Yes. Is it visible now? Okay, wonderful. Yes. All right. So, like I said, for working on your behavior, आपके daily के rituals हो सकते हैं. It could be meditating for 10 minutes. It could be going on walks for 20 minutes. It could be reading a book. लेकिन और reading a book which is a self-help book आपको empower करता है. कुछ आपकी डेली प्रैक्टिस होनी जरूरी है. देखो आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव, अगर आप रोज ब्रश करते हो तभी यू हैव गुड ओरल हेल्थ, ठीक है? अगर आप वो ब्रश करना बंद करो, क्या बोलो कि हाँ चल ठीक है कल तो किया था आज क्यों करूं, इमेजिन हाउ दैट वुड अफेक्ट योर ओरल हाइजीन, ओके, योर ओरल हेल्थ, ओके. सिमिलरली अगर आपको आपका माइंड स्ट्रांग करना है, अगर आपको आपका बिहेव अगर आपको अपने आप को इस तरीके का बनाना है कि यू कैन नेवर फेल और यू कैन मूव फ्रॉम फेलियर्स सो फास्ट कि लाइक दैट आपको पता ही नहीं चले कि व्हेन दैट फेलियर केम एंड वेंट, यू हैव टू बिहेव इन अ वे जहां पे आप यू आर एक्सरसाइजिंग ऑन इट एवरी डे. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रोज सोचो कि मैं कैसे आज फेल होने वाला हूँ या होने वाली हूँ, पर मैं ये बोल रही हूँ कि इट इज इंपॉर्टेंट इन दिस मोमेंट टू रियलाइज कि भाई अगर मेरे कोई डेली रिचुअल्स होंगे तो मुझे आगे बढ़ने में ज्यादा आसानी होगी. मैंने जो डेली इवोल्यूशन प्लानर बनाया है, आप यूट्यूब पे उसका लिंक है, आप देखो उसको. एंड 7 minutes मॉर्निंग, दैट इज व्हाट आई कॉल इट. सुबह के 7 मिनट आप स्पेंड करो अपने आप पे, आप अपने दिन के लिए जैसे रेड बुल पी रहे हो वैसा हो जाएगा, राइट? ट्राई इट ऑन एंड फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चंस. मेरी पूरी बुक मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो. इट इज कॉल्ड ऑल्सो डेली इवोल्यूशन प्लानर. आपका बेसिकली वो प्लानर है, आप डेली का प्लान कर सकते हो उसमें एंड आप जान सकते हो कि आप लाइक यू कैन प्लान योर डे और इस तरीके से कि आप अपने गोल्स की तरफ, चाहे वो स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड हो चाहे जो भी हो, उसकी तरफ आप आगे बढ़ो. नाउ द सी, कॉग्निशन. हाउ आर यू इंटीग्रेटिंग योर डेली प्रैक्टिस? आपका जो डेली प्रैक्टिस है, मेडिटेशन है, कॉन्शियस थिंकिंग है, रिफ्लेक्शन थिंकिंग है, उसको आप कैसे अपने थॉट्स में इंटीग्रेट कर रहे हो, ऑलराइट? सो फॉर एग्जाम्पल अगर बुक में लिखा हुआ है दैट एवरी डे say 3 things that you like about your life, okay? So 3 things. Number 1, oh I love that I'm doing a presentation for UVA. Number 2, I have good friends. Number 3, I have a good job, okay? एंड आप पढ़ते पढ़ते बोलते हैं तो क्या बकवास है, ये तो कोई फालतू है, इससे थोड़ी ना होता, इससे कुछ नहीं होगा. नाउ दैट इज द वे वेयर आप अपने जो बिहेवियर है आपको इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा. ओके, सो से 3 थिंग्स अबाउट जो मेरी लाइफ में अच्छी चल रही है, लेट मी ट्राई दैट, ओके, एंड इंटीग्रेटेड इनटू योर डेली रिचुअल्स. आपकी जो बिहेवियर टेक्निक्स पे आप काम कर रहे हो उस पे करो. ऑल्सो बी केयरफुल हु डू यू कनेक्ट विद व्हेन यू आर सैड एंड लो. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपको परेशानी होती है आप किससे कनेक्ट करते हो. नाउ व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपकी जो संगत है वही आपकी रंगत बताती है, ठीक है? अगर आपकी संगत में ऐसे लोग हैं जो आपको नीचे खींच लें, नॉट बिकॉज दे डोंट लाइक यू बट बिकॉज ऑफ देयर ओन रीजंस, ठीक है? लाइक अगर आप किसी के पास जाओ कि यार आज दिन अच्छा नहीं जा रहा है, बोलता है मेरा भी नहीं जा रहा है, राइट? सो अगर वैसा है, so that is not helping you, that is not helping your thinking. But if you have friends जहां पे आप बोल रहे हो कि हाँ मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा है, and that person comes to you and says that you know what, let's do something to make this day better, all right, that is a good friend. Or somebody who says to you that okay, tell me about it, I'm going to give you a listening ear, let's discuss it and let's see how we can get you out of it. That is a good example. And last, are you ready for D? Everybody, are you ready for D? Yes. D, dance. So I have Ranveer Singh flossing for us. Okay. Dance.
Motion creates emotion. It is so important. If you are in no motion, there is no emotion. But if you are in motion, it creates emotion. And dance is a happy motion. It is also an excellent cardio exercise that promotes well-being. Okay. अगर आपको अच्छा फील करना है, आपको किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही अच्छा फील कर सकते हो, राइट? सो सिंपल थिंग इज डांसिंग. नाउ डजंट मैटर कि आप भरतनाट्यम डांस करो, आप गरबा डांस करो, आप भांगड़ा डांस करो, या आप लुंगी डांस करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट डांसिंग इज अ वेरी गुड वे ऑफ इंस्टेंटली चेंजिंग योर स्टेट. ओके, सो अगली बार फेलियर हो और अगर आप डांस करो ना, दैट वुड बी द, क्या बोलते हैं वो, आपके सक्सेस की, फेलियर के ऊपर सक्सेस की चरम सीमा होगी, राइट? कि अब फेलियर हुआ है एंड यू आर एबल टू डांस. ओके, इस मोमेंट पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, एंड विच इज हु इज बॉलीवुड्स मोस्ट पॉपुलर एक्टर राइट नाउ? चलो इसका जवाब दो. Oh, I have a question in the meanwhile. How to find those kind of friends? Any clue? Let's say अगर आपके आजू बाजू में ऐसे कोई नहीं है, please go on Facebook. Go and connect in that group called Positive Thinking. Go on Instagram. Follow me. Because there are people who are there who are putting very empowering content, and you can actually learn so much from that content. Akshay, Sonu Sood, Akshay Kumar. Okay, so like there are a lot of things that is coming, but top is Akshay Kumar. Yes, Akshay Kumar is probably Bollywood's most popular actor right now. And it's not because he's the best, okay? It's not because whatever reason. But the reason is that this, or the simple reason that I would say is this: because after 14 flops, he was still ready to do the next movie. 14 continuous flops. And he was ready to do the next movie. And he was ready to do the next movie. And he was ready to do the next movie. नॉट थिंकिंग यार ये मूवी भी फ्लॉप हो गई. अभी 14 बार कौन कंटिन्यूअसली फेलियर लेता है? एंड दिस इज वेयर द सुपर हीरो फॉर्मूला कम्स. मैंने लिंक्डइन पे एक आर्टिकल लिखा है, आप लोग लिंक्डइन पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं. एंड लिंक्डइन पे ये आर्टिकल मैंने इसमें ये लिखा है, बिकमिंग अ सुपर हीरो. जितना ज्यादा अगर आपका बड़ा फेलियर होगा ना, उतना बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है सुपर हीरो बनने के लिए. और मैंने उसमें भी बैटमैन का एग्जाम्पल दिया है, या सुपरमैन का एग्जाम्पल दे सकती हूँ अभी आपके लिए, कि जब सुपरमैन स्टार्ट करता है उसका जर्नी, वो छोटे मोटे काम कर रहा है, किसी को गिरने से बचा रहा है, किसी को एक्सीडेंट से बचा रहा है. बट जब बड़ा एनिमी आता है, लक्स लूथर आता है, तभी वो सुपरमैन की जो सुपरनेस है, जो स्ट्रेंथ है, वो और शाइन करती है. सो लाइफ में कभी भी फेलियर आए, उसको इस तरह से लो कि अरे यार ये फेलियर आया है, यानी कि इट इज माय टाइम टू शाइन. नाउ दैट दिस फेलियर हैज कम, एंड द बिगर द फेलियर द ब्राइटर यू कैन शाइन. ऑल्सो दोनों चीजें हो सकता है. द बिगर द फेलियर द मोर डार्कर प्लेस यू कैन गो, बट बिगर द फेलियर the bigger you can shine. Because if you follow this ABCD formula, you will find yourself in a place where you can shine, and you can also help others shine. All right. My website is on my, I will show it to you. Okay. So now, very important. Let's dance. Everybody get ready. I'm going to put, and I am dancing too. Okay. Can you hear the music? I don't know what's going on. No. I need feedback from someone. No. You cannot hear the music? Okay, so let me try this then. I am going to okay. Everybody get ready. Please, अगर आपके phones आपने, can you see now? Think you can. I think you can. So if everybody please stand up. I'm going to stand up with you. I hope, can you hear the audio now? Okay.
I hope everybody got to dance at least somewhat. Yes, though, maybe. Yes, somewhat. So I know that the streaming was a little slow again because I'm presenting it to you. But I hope you can still dance on the whole song once you have some more time. But I just wanted to take you through this process because I wanted to let you know that it is a good thing to dance, and doesn't matter what dance you are doing, but movement creates emotion. And please tell me if somebody is feeling sad because they were just asked to dance. I'm sure there would not be any person like that. Everybody would be happy to dance. So, any questions? Any questions? Any comments?